among us. जी हाँ, UK Jha sir, ex-chairman of Sahodaya Group. May I now request to UK Jha sir to please come on the stage for some golden words. Give a big round of applause. Very good afternoon to everyone. The chief guest of today's function, Shri Manglesh Vyas ji, the DU, Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, and all the members of the School Management Committee, and the Principal, Mr. Chatterjee, teachers, parents, and all the students of the IATV. I'm grateful to all of you for inviting me in today's event to see such a wonderful performance of the students. I'm overwhelmed to see such a beautiful performances. And it is not only the performance, it was conveying the message to the society, whether it was the message of respect for mother, whether it was the message of cleanliness, and depicting the whole story of Tulsidas, the kind of values which the institution is inculcating among the children, because they are spreading those values to the society, and they are the future citizens of the India. So if they carry those values along with them, so I'm sure they are going to create a beautiful society, a livable society, and the deterioration of values which we normally observe these days in the society, that would be totally eradicated. So such small children, even they are also having such kind of a value system, and it is the function which basically creates such kind of the environment where they learn. It is not only the academics where the children have to groom, they have to learn those cultural values also. We have to develop their whole personality. The complete personality development is very, very necessary. So I congratulate all the teachers and the principal and the management for providing such a environment where the children learn on their own, and the proud parents, those who have come today and observing and witnessing their performances. So they are, I think, really proud parents. So these children, when they go out of their school, they would be definitely successful in their career, and whatever they have thought of, whatever the parents have thought of for them, they would definitely succeed to get that. So once again, I congratulate all the children, the management and the institution fraternity for providing and creating such an environment for children to learn on their own and conveying that message in the society and having those values which are deteriorating day by day. So they are going to create a beautiful society for tomorrow. Thank you so much for inviting me, and I'm thankful to the principal also for calling me and seeing these wonderful performances. I have little less time because I have certain events in my institution also, so I would be leaving. So at my request, she accepted. So I'm sure the rest of the program would also be very, very wonderful, and you all would be enjoying. So apology that I cannot stay for the whole program, but best wishes for the rest of the program also. Thank you so much. धन्यवाद सर। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा श्री मंगलेश जी व्यास सर को, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। मैं सर आपसे निवेदन करूँगा कि आप मंच पर पधारें एवं हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां आज के हमारे मुख्य अतिथि के लिए।
इंदौर अनाज और तिलहन व्यापारी संघ की इस एजुकेशनल एकेडमी के बहुत खूबसूरत एनुअल फंक्शन के हमारे पार्टिसिपेंट प्यारे प्यारे बच्चों, इस संस्था के चेयरमैन अग्रवाल साहब, सतीश गुप्ता जी सचिव महोदय, संस्था की प्राचार्य शोभा रंजन चटर्जी मैम, एक बार पुनः, क्योंकि जिनके बिना इस स्पर्श कार्यक्रम को हम लोग वो नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते या दिल में रख नहीं सकते, प्यारे प्यारे बच्चों, उनके अभिभावक, इस विद्यालय के बहुत क्रिएटिव और डेडिकेटेड टीचर्स, सही मायने में मैं इस कार्यक्रम को देख के अभिभूत था और उसमें इतना खो गया था कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं मुझे इस डायस पर आकर अपने बारे में बोलना पड़ेगा। परंतु जो बच्चों का परफॉर्मेंस देख रहा था, बच्चों के चेहरे पे जो प्रसन्नता नज़र आ रही थी, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था, उसको देख के मैं एक बात बड़े मतलब विश्वास से कह सकता हूँ कि ईश्वर का अभी इस बच्चों पर, इस विश्व पर, इस परंपरा पर, इस सृष्टि पर आज भी भरोसा है, तभी ये चिरंतन चल रही है और बच्चे हमारे रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। और सही मायने में जिस दिन भगवान का भरोसा हम पर से मिट जाएगा, उस दिन ये बच्चों का इस जीवन पर आना, इस धरती पर पदार्पण होना समाप्त हो जाएगा। सही मायने में बच्चे हैं तो हम हैं, बच्चे हैं तो कल है। बच्चों की मुस्कान, हम लोग कहा करते हैं, राष्ट्र की शान। और जब मैं ये अपने छात्र जीवन में ये सुना करता था, ये बच्चे की मुस्कान राष्ट्र की शान कैसे होगी, परंतु आज मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि वाकई में बच्चे की मुस्कान हमारे देश का गौरव होती है, हमारे देश का सम्मान होती है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ बच्चे अपना परफॉर्म कर रहे थे, उसको देख के एक बात बिल्कुल कही जा सकती है कि आने वाली सदी हमारे भारतवर्ष की होगी और इसके शुभ संकेत मिलने प्रारंभ भी हो गए हैं। बीच का कुछ समय होगा जब हमारे देश पर कुछ अन्य फिरंगियों का या अन्य देश का राज रहा होगा और उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे गौरव और हमारे सम्मान को समाप्त करने की कोशिश की होगी, हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचाई होगी। परंतु अब ये जो हमारे बच्चे हैं, इनका परफॉर्मेंस देख के हम कह सकते हैं कि हम लोग पुनः एक बार फिर हमारे जो खोया हुआ सम्मान है, विश्व गुरु का खोया हुआ ताज है, किताब है, वो फिर प्राप्त करने जा रहे हैं। और ईश्वर, ये बिल्कुल आप मान के चलें कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर राज किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतवंश में खरीद ली। जिस देश का कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उस देश पे हम भारतीयों का राज है। जो हमारे नासा है और वर्ल्ड में जो डॉक्टर्स हैं, वो हम भारतवंशी हैं। तो वाकई में ज़्यादा दिन अब नहीं कह सकते, आने वाली सदी भारत की होगी, ये बड़े विश्वास से इन बच्चों को देख के कहा जा सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि किसी भी देश का निर्माण, ये जो बड़े बड़े कल कारखाने, बांध और बड़े बड़े प्रतिष्ठान या उनसे नहीं होता है, उस देश का निर्माण उनके नौनिहाल से होता है, बच्चों से होता है। और बच्चों को जो तराशने का कार्य विद्यालय कर रहे हैं, वो वाकई में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। और सही मायने में तो भारत का नवनिर्माण है, हमारी पाठशालाओं में, हमारे विद्यालय में हो रहा है। और ये जो ट्रस्ट है, इंदौर अनाज और तिलहन व्यापारी संघ, इस भावना के साथ बच्चों को तराशने का, निखारने का काम कर रहा है। क्योंकि जब हम जो हमारे छात्र जीवन में पीछे लौट के देखते हैं, तो ऐसा लगता था कि 5th तक तो अगर हमें कोई
क्लास में खड़ा करते तो हमारी गिग्गी बन जाती थी, पर छोटे छोटे बच्चे अपनी आर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। तो वाकई में ये हमारे लिए बड़ी सुपर्ब और प्रेरणादायी चीज़ है। और इतने खूबसूरत कार्यक्रम में मैं वाकई में खो गया था। बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ थी, उनकी जो तैयारियाँ थी, उनकी जो रिहर्सल थी, उसके आगे मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ बोलना चाहिए ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने अपना बेस्ट निकाल कर यहाँ दिया है। और बच्चे, मैं ये जो कह दूँ कि बच्चों में सीखने की ज़बरदस्त शक्ति होती है। अगर हमें आज एक 40 वर्ष के व्यक्ति को कहें कि इस पोएम को याद करो, तो वो जो पोएम याद करेगा उतनी देर में हमारे छोटे बच्चे 5 पोएम याद कर डालेंगे। अगर किसी बड़े आदमी से कह दें कि भाई ये आपके लिए भोजन रखा, ये सुबह का है, ये 12 बजे का है, ये दोपहर का है, ये शाम का, ये रात का है, आप खा लो। अगर आपने वो भोजन चख लिया तो मैं समझता हूँ दूसरे दिन आप काम के लायक नहीं रहोगे। और हमारे बच्चों को कह दो तो वो, जिसको कहते हैं ना लक्कड़ हजम पत्थर है, जितना खिलाओगे खा जाएंगे और नाचते कूदते गाते रहेंगे। बच्चों में इतनी प्रतिभा है, इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है, और इसी क्षमता का उपयोग विद्यालय को करना होता है। मैं ये कहूँ कि जितनी तेज़ी से बच्चों के मनोशारीरिक विकास होता है, उतनी तेज़ी से उसकी उस मनोशारीरिक खुराक की पूर्ति विद्यालय को करनी होती है, तभी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को कितनी शिद्दत से यहाँ के स्टाफ ने, शिक्षक गणों ने तैयार किया है, तराशा है, वो वाकई में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। हमारे बच्चे हैं, ये राष्ट्र का गौरव है। बच्चे की मुस्कान राष्ट्र की शान कहा गया, बिल्कुल सही है। बच्चे, विशेष तौर पर इस विद्यालय के बच्चे, इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया वो वाकई में हमारे हार्ट को स्पर्श कर गया है। मैं कई सारे प्रेजेंटेशन देख रहा था, चाहे कोली नृत्य हो या पंजाब का भांगड़ा हो या फिर जो तुलसीदास जी वाला प्ले हो, वाकई में बच्चों ने अपना सर्वस्व निकाल दिया। तो हम ये कह देते हैं कि भारत की उन्नति बड़े बड़े कल कारखाने से होगी, वो कहीं सही नहीं होगा ज़्यादा, जितना इन विद्यालयों के ओर ध्यान देने से। तो मैं हमारे इस ट्रस्ट का, अनाज और तिलहन व्यापारी संघ का मैं बड़ा मतलब सम्मान करना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत पुनीत कार्य को लिया और अपने पास जो भी कुछ है उससे विद्यालय को संचालित किया। क्योंकि ये कहा गया है कि यदि हम एक विद्यालय खोलते हैं तो बहुत सारी जेल का बंद होना रहता है, क्योंकि यहाँ पर सही मायने में बच्चों को तराशते हैं, उनके प्रतिभा को निखारते हैं। तो सही मायने में राष्ट्र निर्माण का कार्य जो संस्था कर रही है, उसका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बिल्कुल मन में सोच के आया था कि आज बस इस कार्यक्रम का आनंद लेना है, तो मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस ब्यूटीफुल डे के लिए, इस आनंददायक दिन के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। क्योंकि दिन भर की जो हम लोगों की प्रशासनिक कार्यकलाप रहते हैं, उसमें प्रसन्नता और हैप्पीनेस कहीं ना कहीं खो जाती है। आज मैं जब बच्चों को परफॉर्म करते देख रहा था, बच्चों को प्रसन्न देख रहा था, तो अपने आप में इतना खो गया कि मैं कह नहीं सकता, और भूल गया था कि मुझे कुछ यहाँ पर लेक्चर भी डिलीवर करना है। सही मायने में तो बच्चों के जो अभिभावक हैं, अपने बच्चों की जो कला है उसका प्रदर्शन देखने के लिए आए हैं, परंतु इसी बीच मुझे सुना, उसके लिए भी गार्जियन का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद दूंगा। और वाकई में जब हम लोग घर में बहुत अच्छा कार्यक्रम, चित्रहार वगैरह आता है, तो उसमें विज्ञापन आता है, तो हमारा जायका बदल जाता है, हम फिर इधर उधर का काम कर लेते हैं। परंतु ठीक है, आपका जायका भी चेंज हो जाए थोड़ी देर के लिए, आप अगर अपनी जगह से इधर उधर जाना चाहें तो वो कार्य भी कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। इस विद्यालय परिवार के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जो राष्ट्र निर्माण का कार्य इस विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है वो बड़ा प्रशंसनीय है। क्योंकि बच्चे वाकई में हमारी धरोहर हैं। अच्छे बच्चे होंगे, अच्छा उनका नैतिक चरित्र होगा,
अच्छा उनका शारीरिक होगा तो देश सशक्त होगा, और इस देश को मजबूत करने का कार्य ये विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा बच्चों से भी कहना होगा कि बच्चों, ये जो आपका समय है, इसमें आपको ईश्वर ने बहुत ताकत प्रदान की है, बहुत क्षमता दी है। इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, और वही आपको करना है। मैं बच्चों से कहूँगा कि कभी भी आगे बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए किसी परिश्रम से, रियाज से, रिहर्सल से आप पीछे ना हटें। आपके गुरुजन जैसा आपको मार्गदर्शन देते हैं वो प्राप्त करें, बहुत सीखें, बहुत आगे बढ़ें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बार पुनः विद्यालय परिवार ने जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ये ज्ञान रूपी झंडा कभी नहीं रुकेगा। हमारे देश का गौरव, हमारा शीश और ये भारतीय संस्कृति सदैव ऊंची एवं उज्जवल रहेगी। हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद सर। Wow, what a lovely performance, Unnati. Yes, Shriya, indeed, it is. Life is full of unpredictable beauty and surprises, and sometimes that beauty is too much for us to handle. Do you know, Unnati, about the beauty and culture of Rajasthan, and what about their dances? Yes, Shriya, Rajasthan is famous for handicrafts, textiles, and for its colorful tradition. Do you know about Kalbelia dance? No, I don't. Can you explain me, Unnati? Yes, Shriya, why not? Kalbelia dance is a folk dance performed with the tribe. Do you know, Riya? Kalbelia songs and dance are now UNESCO's representative list of the cultural heritage. Now, I am extremely excited to see Kalbelia girls. Now, Kalbelia girls are coming to Grover, so strengthen your seat belts and cheer up for them. Khamma Ganesa. जोरदार तालियां कालबेलिया।
इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए देसी गर्ल्स की है बारी, पर वो तभी आएंगी जब बजेगी तालियां ढेर सारी। पता है तनिष्का, भारत में नृत्य ही संस्कृति है, अलग अलग राज्य के नृत्य की अपनी ही शैली है। हाँ निष्ठा, कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध एवं शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मंदिरों में कथा के भावों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी। यह नृत्य एक प्राचीनतम नृत्य है। हमें विश्वास है कि हम इसे जीवित रखने में समर्थ होंगे। आइए इसे महसूस करें। Hare Rama
प्रस्तुति थी यह। हाँ युवराज, यह प्रस्तुति वाकई बहुत शानदार थी। हमने इन बीते वर्षों में क्या क्या नहीं देखा सेजल। समाज में कहीं प्रदूषण और ना जाने कितनी बेटियों पर हो रहे अत्याचार। और एक सबसे बड़ी आपदा तो हम भूल ही गए। वह क्या? कोरोना, जिसने हम सभी के दिलों को झंझोर दिया है। तो क्यों ना आज हम हमारी प्रस्तुति के माध्यम से बीते गए दृश्यों पर नजर डालें। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी प्रस्तुति जो आपके मस्तिष्क पर एक अमिट छाप अवश्य छोड़ेगी। धन्यवाद। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि
वजह से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यह थी हमारी छोटी सी कोशिश दिलों को दिलों से जोड़ने की। स्पर्श वो नहीं जिसने शरीर को पाया हो, स्पर्श तो वो है जिसने आत्मा को गले लगाया। दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरण देव, अजामिल गीध व्याध, अजामिल गीध व्याध, इनमें कहो कौन साथ, इनमें कहो कौन साथ, पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात, गणिका सीतारी, दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरण देव, हरण देव, हरण देव दीन। धन्यवाद। मेरा भी दिल खुश हो गया। कितनी महान है ये मिट्टी, जहाँ मुझे भिन्न भिन्न प्रांत भाषा शैली के लोग मिलते हैं। भाषा शैली के साथ साथ यहाँ बहुत सी लोक कलाएं भी मौजूद है। लोक कलाओं के साथ संगीत के भी कई प्रकार हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, भजन, गजल, सुगम संगीत इत्यादि। अरे अरे भाई, तुम कव्वाली को तो भूल ही रहे हो। हाँ हाँ, कव्वाली क्यों ना इस वतन की खुशबू से आज की शाम को महकाते हैं। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत कव्वाली। ये धरती माँ है मेरी के अलग ऐलान लिख देना, मेरी इस जिंदगी पे इसके हैं एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, ये दुनिया वाले
होती है और प्रस्तुति की शोभा तालियों से होती है। जोरदार तालियां। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। अभी तो इस चिड़िया की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांघा है समुंदरों को, अभी अभी लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे खुशी, ये आजकल के विद्यार्थियों को क्या हो गया है? 10वीं का परिणाम भी घोषित हो गया और फिर भी विषय चयन को लेकर कश्मकश। हाँ सारा, यही कश्मकश तो उन्हें दिशा भ्रमित कर देती है। वे अपने दोस्तों के प्रभाव में आके गलत विषय का चुनाव कर लेते हैं। परंतु हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही विषय का चुनाव करना चाहिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। डरने वालों से होता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाँ, विद्यार्थी जीवन का ये पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जीवन के इस पड़ाव पर यदि एक गलत निर्णय ले लिया जाता है तो उसका पछतावा जीवन भर रहता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। तो फिर आइए चलते हैं विद्यालय प्रांगण में, जहाँ हो रहा है विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप। So give a big round of applause for such a beautiful. हुर्रे, मैं पास हो गया। कितने परसेंट बने तेरे? मेरे तो जितने बनना चाहिए थे उतने नहीं बने यार। अरे परसेंट में क्या रखा है, मैं पास हो गया ना, इतना काफी है। मुस्कान, तू इतनी उदास क्यों है? यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं कौन से स्ट्रीम में जाऊं। पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊं और केमिस्ट्री वो तो बिल्कुल मेरे दिमाग के ऊपर से ही जाती है। मैं तो साइंस ही लूंगी। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अपन सब साथ में मजे करते हुए पढ़ेंगे। तुम सब लोग साइंस ले रहे हो तो मैं भी साइंस ही ले लेती हूँ। सब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा। यार मैं भी फिर साइंस ले ही लेता हूँ। मुझे तो ना चाहते हुए भी साइंस लेना ही पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि तुम सब लोग मेरे साथ रहोगे। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलते हैं। अरे यार क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? एग्ज़ाम आ रहे, टेंशन हो रही है। अच्छे परसेंटेज तो लाना ही पड़ेगा। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वो तो चाहते हैं कि मेरा आईआईटी में ही एडमिशन हो। डोंट वरी, एग्ज़ाम भी अच्छी जाएगी और हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम की टेंशन में क्या कोई ज़िंदगी जीना भूल जाता है? आखिरकार आज रिजल्ट का दिन भी आ गया। सभी बच्चे खुश थे, पर मुस्कान अपने रिजल्ट से खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर भारी निराशा के बादल छाए हुए थे। हर वक्त मिलती है, हर वक्त मिलती है मुझे अनजानी सी डगर। कैसे पूछूं तकदीर से, कैसे पूछूं तकदीर से ये कैसा है सफ़र। क्या हुआ मुस्कान, इतनी उदास क्यों हो? क्या मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई गलती कर दी? मेरा डिसीज़न गलत था? मुझे अपने माता पिता व दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए थी क्या? सर, क्या मुझे सब्जेक्ट बदल लेना चाहिए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? निराश होने की ज़रूरत नहीं। असफलता तो सफलता की सीढ़ी होती है। जब तक हम असफल नहीं होते तब तक सफलता की कीमत नहीं जान सकते। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति एक लौही की तरह एकाग्रचित रहना होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य विशाल अंबर की तरह हाथ फैलाए हुए है, जिसे तुम अपने मेहनत रूपी परों से पार कर सकते हो।
ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े लक्ष्य हासिल हो जाते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हासिल हो जाते हैं जब मन में उम्मीद हो पर खोलकर जीने की। बाट समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे चप्पर। हट समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे चप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें से अब मुश्किल आखिरकार मुस्कान ने अपनी मेहनत और दृढ़ विश्वास के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता अगर मन में दृढ़ विश्वास हो, और अपने इसी दृढ़ विश्वास के बल पर मुस्कान अपनी कश्मकश से बाहर निकल गई। बहुत शानदार प्रस्तुति। माँ की भक्ति का रूप है गरबा, भक्ति और प्रेम रस का नाम है गरबा, उत्साह में नाचने का रूप है गरबा, हाथों का पैरों से तालमेल है गरबा, दिलों को दिलों से जोड़ने का रूप है गरबा, अपने आप में एक त्योहार है गरबा। अंजलि, क्या तुम्हें पता है गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रिधम, क्या तुम्हें पता है नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह गरबा नृत्य और डांडिया रास का आयोजन किया जाता है। आप सभी को पता है गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, मंजीरा, खंजीरी, डंडा आदि का प्रयोग ताल देने के लिए किया जाता है। इसमें खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडिया की खनक से नवरात्रि के इस माहौल को और भी खुशनुमा बना देती हैं। तो आइए कक्षा 5वीं की बालिकाओं के साथ आप सभी को ले चलते हैं गुजरात।
थालियों में कंजूसी ना हो।